नमस्कार. 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या या स्पेशल कार्यावळीन तुमकां येवकार. इल्फीमध्ये विविध प्रकारचे सेक्शन्स असतात आणि या सेक्शनातलं एक महत्त्वाचं सेक्शन जाका लागून गोंयकारांची जी चित्रपट निर्मितीची जी प्रक्रिया असा ती वर्सानुवर्स वाढत चल्ल्या. त्यातूंतलोच एक फिल्म या वर्सा सिलेक्ट जाला. #मोग या नावाचं फिल्म या वर्सा सिलेक्ट जाल्लो असा. फीचर फिल्म असा, फुल लेंथ फीचर फिल्म असा आणि त्याच फिल्माच्या काही टेक्निकल गजाली जावं फिल्म निर्मितीची प्रक्रिया कशी आशिल्ली या गजालीचेर उलोवपा खातीर फिल्माचे दिग्दर्शक आमच्या वांगडा आसात. निलेश माळकर सर, पयली म्हळ्यार तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन. गोवन कॅटेगरीन हो फिल्म सिलेक्ट जाल्लो आसा. तुमकां कशें दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल? First of all, I feel कि the Goan film fraternity and the Goan film industry as it is, it's flushing very good. The thing is, we need to give good content. As far as it is considered, we should give good content commercially. So Right. commercially, even like the previous films which I made, like Solkari, Kantar, there were like people did ask me question, कि तुका why you want Jackie Shroff. So I said, see, I took him so I can take this film nationally again. Right. If I'm supposed to release this film in Delhi, I took this film recently in Delhi, that Soul Curry and all that. So then people come to watch that film because they need a reason to see a film from other state. No doubt, we can promote a film with subtitles also. That is also a part. But making a pan-India film again is a very different. So this time what I did was making #Moog. I roped in a Tamil actor named Bharat Nivas and a Marathi actress from Mumbai that's called Nakshatra Medikar. So I tried to collaborate both of them in the lead pair, and rest other all are the strong pillars are my Goan actors like Manoj Joshi, Salil Naik, Prince Jacob, Libby Mendoza, John Aguiar, all this. And the singers are Sonia Shirsat, Lakshman Naik, Rajesh Madgavkar. And the only thing I roped in a South Indian music director. So at the same time he could take the flavor from the South also and from the Konkani pace also. So I prefer that you watch the film on 26th. So when you will see the visuals, you will hear the songs, you will really appreciate कि okay, we have made at par. So when a commercially when this same film in other language, when it will be it has been made in Tamil, Telugu, Malayalam, it automatically goes with the culture. So I kept all the cultures all together to try to make it nationally pan-India. Because see, when I pitched this film with big banner and I spoke with Deepak Bandekar, there was a reason for him again to put money again in a Konkani film. Because the Konkani film for Maharashtra, in Marathi film, you have got centers. Nagpur, Pune, Kolhapur. So at least a producer puts in money and he covers from those center. But in Goa, you don't have a center. You have got North Goa, you have got South Goa. And then you have got 25-30 theaters. Then how are you going to recover in only the feast, only those festivals, or maybe only displaying at ESG? That will not happen. So the plan was, right, why not we make it pan-India? Why not somebody in the other states also watch the film? Then they need a reason to buy a ticket, to put some 200. Okay. So they say, this is our hero. So they walk in. It is immaterial whether it is primary Konkani film done, but then ultimately it's out in Tamil. Because we have tried to match the lip movements in all the languages. So it will not make a difference. The songs are completely composed for all the 4 sections very separately. So that is another, wonder for the film. But I hope that this, it's not an experiment. This is a big step forward which was been taken by Mr. Deepak Bandekar, Chandan Bandekar to actually make a film at this stage. Right. And we have done at par, not huge budget also. Like even I made Jackie work with me in the last 2 films. He didn't charge what he charges in Bollywood. I had to explain even Bharat Nivas also that what. So this cooperation from these actors also, because ultimately film media is completely us together. Right. So ultimately the actors also understand ki what they are doing and in which territory actually they are doing the film. So that's how that film happened. खूप महत्त्वाची गजाल निलेश सरान सांगला की फिल्म ही गोंयपुरती मर्यादित न रावता
ही फूल ऑल ओव्हर इंडिया भायरूय वचपाची, जेणे करून फिल्म निर्मितीची जी नॅशनल लेवलारूय वचपाची. South India. रायट. We got all those centers we are covering, like in the Hindi commodity will go to Bombay, Marathi will go to Maharashtra, Tamil, Telugu, Malayalam, all languages. सो हेका लागून गोंयचे तरणाटे जे गोंयचे जे एक्टर्स आसात तेय ताका लागून फेमस जावंक शकता, तांकांय भायल्या फिल्माची ऑफर्स बीन येवंक शकता. अशा खुबशा ठिकाणी आमी पळयतात की हो एक्टर कोण, एका मातशें पळोवया ट्राय करून, अशेंय जावंक शकता. सर, दुसरी गजाल म्हळ्यार हॅशटॅग मोग ही जी फिल्म आसा नक्कीच एक वेगळी आनी वेगळ्या कंटेंट दिवपी फिल्म आसतली. निर्मितीची प्रक्रिया आमी विशय उलया की कशा पद्दतीन ही स्टोरी तुमच्या तकलेन येयली, कित्याक तुमीच रायटी आसा. So the story was actually written by me from quite a long time back. So I've been doing some films in various languages like Hindi, Gujarati languages, Marathi languages. I've been doing always. But then the day I started doing Konkani languages, again I came back to the hometown. So I said it is more advisable, or maybe I'm feeling more close doing a Konkani languages film. So the script which I was bound to do maybe in Hindi or I started making them in Konkani. So today also hashtag Move was initially written in Hindi, and then I translated it again back. Then I took Mr. Tommasino Cardozo to write in the lyrics are written by Tommasino. And he has even translated the languages, the dialogues which I have written in Konkani to maintain because there we all, like I told you earlier, it comes with a Sashti Konkani or that other kinds of Konkani. So you have to maintain that which Konkani we actually have to go with. So these all things actually made a lot of differences, and then the whole thing was cultivated nicely. सर, आणि एक गजाल म्हळ्यार आमचे जे गोंयचे जे कलाकार आसात, खुबशा फावटी अशें दिसता की तांकां एक्टिंगाच्या बाबतींत खुबशे फावटी जज केल्ले गेले वयता. तुमकां कसो अनुभव आसा? सगळे गोंयचे जे तरणाटे आमचे ह्या फिल्मान आसा तुमच्या, त्यांचो बद्दलचो अनुभव प्रोडक्शनाचेर सेटाचेर कसो एक्सपिरियन्स आसलो तुमकां? The actors are very professional. I have worked with one of the best actors here, like Manoj Joshi. He literally is like method actor. If you will see him in real life, he is a very lean and muscular guy. He put on about 10 to 12 pages to become a father in the film, and he has done an outstanding work. If you will watch the film and you will see Manoj maybe on the premiere day, you will say, "Are you that guy?" Salil also has done a fantastic job. He is also a one-take actor. Your John Aguiar, Libby Mendoza, and Prince Jacob, of course, I salute, he has done a cameo, but his entry in the church and the dialogue delivery, what he about the germ actually of the film is actually spoken by him. So he has done a fantastic job again in there. सर, फिल्म निर्मितीची प्रक्रिया जे प्रोडक्शन असता, कितके दिसाचे प्रोडक्शन चलताले शूटिंगाचे? I've always been like from my beginning days, I try to wind up my film within 4 months. My first print is out on the 4th month. Even this Moog also, you talk about Sholkari, Kantar and any other Marudas or whatever I've done, Shadow, like 4 months, because the day I start shoot, from that day my edit also starts in the same room. Adjoining me. So by the second month, the whole film is locked after showing the producers. They like it, they want some change. Then immediately my post production starts, and this time it was fantastic that I had a post production completely done in Goa, because Big Banner has their own post production. So the DI was done here, the 5.1 sound was done here, everything. You will really love this. You will wonder whether you will be shocked. Acha, this is not done in Bombay. This is done in Goa. So they have a very good facility here. So I think I was here for about 4 to 5, 6 months actually. I was staying there and completed the film exactly on the 4 months, because there was another target for me that my censorship should be before 31st August. Right. So that was my another reason. So I had to again go back for that. सो अशा पद्धतीने ही पूर्णपणे गोव्यात तयार केलेली फिल्म आहे. शूटिंग, त्याच्यानंतर पोस्ट प्रोडक्शन, सगळ्यात महत्त्वाची बाजू की
बऱ्याचशा फिल्मसाठी आपल्याला गोव्याच्या बाहेर म्हणजे महाराष्ट्रात असेल, मुंबई, पुण्यात असेल, इथे जाऊन पोस्ट प्रोडक्शन करावं लागतं. पण हॅशटॅग मोग हा चित्रपट पूर्णपणे गोव्यात बनवलं गेलेलं आहे आणि त्याचं पोस्ट प्रोडक्शनसुद्धा गोव्यामध्ये बनवलं गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे येत्या 26 तारखेला हा चित्रपट नक्कीच आयनॉक्समध्ये किंवा मॅक्युनिस पॅलेसमध्ये प्रदर्शित होणार आहे, स्क्रीनिंग होणार आहे. आणि त्याच्या आधी 24 तारखेला आपल्या कलाकारांसोबत रेड कार्पेट असणार आहे. रेड कार्पेट बघायला या आणि फिल्म देखील बघायला या. हॅशटॅग मोग. And very soon, by Jan or Feb, it will be a complete all over. Yeah, it will be a proper theatrical, big, huge release. First Goa state, then Tamil, then Bombay, all states. Yeah. So those ads and promos will start running, then people will come to know. But I would definitely say कि automatically this film has to go by word of mouth, rather than me telling and convincing people, please you come and watch the film, come and watch the film, because that is not the way to promote the film. I have to judge and believe my own the thing that I have made, that people like it, and by way of mouth, at least you should go for once and see. So I hope it happens that way, and I hope audiences like it, and I'm looking forward that Konkani films also flourish in the future. We have got good directors here, we have got excellent actors here, and I'm looking forward to work with all of them. Thank you. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला भेटून माहिती दिलीत आणि प्रेक्षकांना देखील एक आवाहन केलं की चित्रपट बघण्यासाठी नक्की या. खूप खूप धन्यवाद. जशें आमी कोंकण भागाचेर पळयतात की दशावतार हो एक नाटक ह्यो आमच्या कोंकण भागात खूप प्रसिद्ध आसा. तसोच आमी जशे उत्तर देशान वयता त्या वेळाचेर आमकां रामलीला ही एक कला आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या रामलिलेचेर एक डॉक्युमेंटरी सद्या इफ्फीक येयलेली आसा आणि त्या इफ्फीचे डायरेक्टर आमच्या वांगडा आयज, त्या फिल्माचे डायरेक्टर आयज आमच्या वांगडा आसा. रजनी आचार्य सर. सर, वेलकम टू आवर शो. सर, I'm very happy that I'm going to talk to you, and all viewers will get lot of information about Indian culture and art. That is our अपना हिंदी में बात करता हूँ मैं. ठीक है सर, चलेगा. मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ कि रामलीला हमने क्यों बनाई, कैसे बनाई, और ये राम जी की कृपा है तभी बन सकती है. इसको हम ड्रामा फॉर्म में भी देख सकते हैं, इसको हम बैले में देख सकते हैं, इसको हम सेलुलाइट फिल्म फॉर्म में देख सकते हैं, और बहुत सारी इसके ऊपर फिल्में बनी हैं, प्ले बने हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में. बाली में भी चलता है, हर जगह चलता है. लेकिन एक जगह है जो है बिसाऊ करके, राजस्थान में एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है. वो गांव में ये रामलीला 160 साल से, या तो कहा जाए कि जब से अगस्त क्रांति अपना इंडिया की इंडिपेंडेंट की बात चली उस वक्त से ये रामलीला प्ले कर रहे हो लोग. गांव के लोग हैं, गांव के द्वारा है, आदमी के द्वारा है और गांव वालों के लिए है. तो ये अपने निजानंद के लिए, खुद के आनंद के लिए, और भगवान की नवरात्रि में ही भगवान को याद करने के लिए ये रामलीला वो लोग मंचन करते हैं. इसकी एक खास बात ये है कि रामलीला रोड पे की जाती है. 200 या 250 मीटर लंबा एक रोड है और 50 मीटर की इसमें जगह है जिसमें रामलीला करते हैं. और इसमें मुख्य रामलीला है, गांव के लोग ही इसमें पार्ट लेते हैं. जो बचपन में बंदर था वो बड़ा होकर राम भी बना है, और राम कभी कभी ये रावण भी बना है. तो ये उसके निज आनंद के लिए है. वहाँ पे जब स्वतंत्र सेनानी वहाँ पे 3 आए थे तो उसमें एक लेडी आई थी. वो लोग छुप गए थे, वो गांव में, छोटा गांव था, तो उसको ये लोग तलाश कर रहे थे. अपने इंग्लैंड के जो पुलिस है तो वहाँ गांव में छुपे. तो उसने छुपने के साथ में देखा कि ये गांव अच्छा है, तो बोला मैं कुछ प्रवृत्ति करना चाहिए. तो उसने अपने जहाँ ठिकाना था वहाँ पे बच्चों लोग को शस्त्र अस्त्र विद्या, संस्कृति और अपना जो ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, उसके बारे में बताना शुरू किया. तो उसने ये रामलीला का मंचन शुरू किया. ये कलाकार लोग हैं, ये कोई डायलॉग तो बोल सकते नहीं है, एक्टिंग कर सकते नहीं, तो ये लोग क्या है, सब अपना मुखौटा पहनते हैं और ये रामलीला खेली जाती है. उसको वो लोग दंगल बोलते हैं ज़्यादातर.
कि राम ने, हनुमान जी ने किस किस का संहार किया। जब भी पृथ्वी पे आप अवतार लेते हैं भगवान, तो उसका एक कुछ कार्य होता है कि जो दुष्कर्म हो रहा है या जो दुष्ट आदमी है उसका विनाश करके शांति का एक वातावरण खड़ा करना। लोगों मतलब भगवान भी जनता की, पब्लिक की और लोगों की चिंता करते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। आपने महाभारत में भी सुना होगा कृष्ण ने अवतार किस लिए लिया। आपने सुना होगा रामायण में भी रामचंद्र भगवान ने किस लिए अवतार लिया। तो हम लोग को, हमारे एक फ्रेंड है, मैं उसका खास नाम मेंशन करना चाहता हूँ, मिस्टर कमल पोदार। वो उस गांव के रहवासी है और बम्बई में रहते हैं और मेरे दोस्त है और बड़े बिजनेसमैन टाइकून है। तो उनकी इच्छा थी कि ये रामलीला जो है डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। तो हमने उसका पहले भी बहुत काम किया था, हमारे पे भरोसा भी था। तो उन्होंने कहा कि एक रामलीला का प्रोग्राम है, आप हमारे गांव में आइए, शूट करिए। तो हम वहाँ गए तो हमने सोचा था स्टेज पे प्रोग्राम होगा, 3 कैमरा लगा देंगे और शूट करके ख़त्म करेंगे। ये रामलीला जो है शाम को 5:30 बजे शुरू होती है, 7:30 बजे ख़त्म होती है। पहले ये बात होती थी शुरू 4:30 बजे और ख़त्म होती 6 बजे, बिकॉज उस ज़माने में लाइट और कुछ उजाला नहीं था, तो दिन के संध्या समय में ये रामलीला खेली जाती थी। अभी वही परंपरा चालू रखी है, लेकिन टाइमिंग चेंज हो गया है थोड़ा, बिकॉज अभी लाइट आ गई है। तो अभी शाम को 6:30 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक ये रामलीला का मंचन होता है। वहाँ पे सिंबॉलिक अयोध्या बनाई गई है, वहाँ पे सिंबॉलिक अशोक वाटिका है, वहाँ पे सिंबॉलिक तुम्हारा रावण की लंका है, अयोध्या है। ऐसे अलग अलग वो लोग सिंबॉलिक स्टेज बनाए हुए छोटे छोटे, जैसे आप देखते पीछे प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हुए, तो वहाँ पे मंचन होता है। फिर जब हमने देखा ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, तो हमारे टीम को बढ़ा दिया। हम लोग 6 कैमरा और ड्रोन लेके ये पूरा शूट किया 15 दिन तक। हमारे पास कुछ 150-200 फुट का मटेरियल था, रॉ फुटेज। उसमें से हमने 3 घंटे का एक फर्स्ट कट बनाया। फिर हमारे जो बड़े ज्ञानी फ्रेंड है धनंजय व्यास, उनकी हेल्प लेके हमने प्रसंग के अनुरूप दोहा और छंद हमने सिलेक्ट किए। और हमने सोचा कि हमारी फिल्म में 1 घंटे की फिल्म होगी तो 25 के 30 मिनट दोहा छंद चलेंगे स्टोरी को आगे लेने के लिए, और 25-30 मिनट नरेशन चलेगा, जो कथाकार कथा करते हैं तो नरेशन चलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि 1 घंटे के पैकेज में आपको म्यूज़िक का भी अच्छा एक आनंद प्राप्त होता है। और म्यूज़िक के लिए हम लोग ने बड़ी सही कलाकार चुने। अनुराधा पौडवाल है, अनूप जलोटा है, वो गांव के एक सीमा विश्वास बड़ी सिंगर है राजस्थान की, बहुत बड़ा नाम है, उसकी भी रेट नहीं मिलती है। जसवीन मीर ने भी गाना गाया है, कुलदीप जी ने म्यूज़िक दिया है, मंजीत सिंह कोहली जो है उन्होंने नरेशन लिखा और लिरिक्स लिखे हैं। तो हमने पहले ये 3 घंटे की जो रामलीला थी उसके अनुरूप हमने 1 घंटे का प्लानिंग किया, म्यूज़िक कैसे करना, नरेशन कैसे करना। फिर हमने पूरा रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने एडिटर को बोला कि आप 1 घंटे की फिल्म बनाओ। हमारा ये इंसिडेंट है, राम का जन्म हुआ, वनवास हुआ, सबरी का बात हुई, अहल्या की बात हुई, इसका मोक्ष हुआ, इसका जो दुष्ट आत्मा थे उसका जो राम जी ने हत्या की, वो सब अच्छे अच्छे जो प्रसंग हमने किए। रामलीला बिसाव में 15 दिन चलती है। नॉर्मली रामलीला हर जगह दशहरा को रावण का पुतला जलाते हैं और रामलीला ख़त्म हो जाती है। इस केस में 15 दिन चलती है, जब राम वापस अयोध्या आते वहाँ तक की स्टोरी है। वहीं के कलाकार है तो हम उसको बोल नहीं सकते कि आप एक्टिंग करो, तो जो हो रहा है हमारे सामने दंगल, उसको हमें कैप्चर करना है। तो मैं हर कैमरामैन को बोल दिया तुम खुद डायरेक्टर हो, एक एक कैरेक्टर को पकड़ के एक सीक्वेंस पकड़ो। तो हिसाब से और ड्रोन वाले को भी बता दिया ये सीक्वेंस ऐसे हमें लेना है। तो राम जी की कृपा है आज हम फिल्म बना पाए हैं। इसको हम बोलते हैं म्यूजिकल एपिक ऑफ भारत, ये हमारा टैगलाइन है। ये ताइवान, यूएसए एंड भारत का को प्रोडक्शन है। और इसमें जो हम जो बताना चाहते हैं 1 घंटे में पूरी रामायण बताना चाहते हैं, और हम लोग ने कोशिश की है। हम ये नहीं कहते कि हम सक्सेसफुल है, ये राम जी की कृपा है, राम की माया है, वो जो करके दिया हमको जो मौका मिला हमने किया। सबसे पहले तो हमारे कमल पोदार जी बड़े खुश हुए हमारा काम देख के। तो अभी हम चाहते कि ये चीज़ एक जगह पड़ी रहे, उसका कोई मीनिंग नहीं है।
तो इसको हम चाहते हैं कि दुनिया भर में इसके रामायण इंडिया का कल्चर आर्ट को हम फैलावे। तो उस दृष्टि से हम अभी इसको मार्केटिंग या तो फेस्टिवल में इसको एंट्री दे रहे हैं। बहुत से फेस्टिवल में हमको इनविटेशन मिला है, तो हमें लगता है कि हमको बहुत सारे फेस्टिवल में इसका मौका मिलेगा लोगों को दिखाने का। और दूसरी बात यह कि अयोध्या में जो मंदिर बनता है वहाँ पे हमें एक जगह मिल रही है, मतलब ऑडिटोरियम टाइप जगह मिल रही है। वहाँ पे हम ये रामलीला जो है उसका स्क्रीनिंग होगा। वी आर ट्राइंग टू डब अलग अलग लैंग्वेज में, नरेशन डब करेंगे। दोहा छंद तो डब करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एज इट इज़ रहेंगे। तो इंडिया की अगर 10-12 लैंग्वेज में करते हैं तो वहाँ पे लाखों लोग वहाँ रोज़ आने वाले दर्शन करने। तो हर एक ग्रुप आके बोलेगा हमें गुजराती में देखना है, हमें मराठी में देखना है, हमको कोंकणी में देखना है, या हमको इंग्लिश में देखना है, फ्रेंच में देखना है। तो वो अपना स्लॉट बुक करेंगे और वो 1 घंटे का फिल्म दिखाई जाएंगी। और जितने मास्क जो हमने यूज़ किए है, जो प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसका भी हम वहाँ डिस्प्ले लगाएंगे। तो ये एक बात है। बाकी तो रिकॉर्ड करना, वर्ल्ड रिकॉर्ड करना हम कोशिश कर रहे हैं। मौका है, बहुत मौका है, बिकॉज इट इज़ यूनिक प्रोडक्ट। तो राम जी की कृपा होगी और आप दर्शक का आशीर्वाद होगा और आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया, आपकी शुभकामना होगी, तो हमें लगता है कि हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सर, आपकी जो फिल्म की जो ट्रेलर है वो टाइम्स स्क्वायर में दिखाई गई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा था कि हमारा रामलीला का जो फर्स्ट शो था वो हमने दशहरा के दिन अपना बिसाव में रखा था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ की पहली फिल्म है जो मैंने 1 साल में पूरी की है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्री बहुत टाइम लगता है। हमने मोहम्मद रफ़ी की डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसमें हमको 3 साल लग गए, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों का इंटरव्यू करना था, पाकिस्तान में शूट करना था, दिल्ली में शूट किया, तो एक अलग ही थिंग है। लेकिन ये हमने 1 साल में पूरी की। तो हमने शूट किया नवरात्रि में और स्क्रीनिंग किया दशहरा के दिन। तो वो मौके को ज़रा यादगार करने के लिए हम लोग ने टाइम्स स्क्वायर पे हमारा एक ट्रेलर लॉन्च किया है। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका, न्यूयॉर्क में है, और वहाँ के लोगों ने तालियां बजाई, पसंद आया। सर, आपकी जो यूजुअल आइडेंटिटी है उससे आपको नाम मिला है, आपसे सम्मानित किया है वो लाइफोग्राफर। आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ रहते हैं उनके ऊपर आपने की है। महेंद्र कपूर या फिर आपने बताया कि मोहम्मद रफ़ी, इनके बारे में आपने बताया। जब डॉक्यूमेंट्रीज़ हम देखते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत समय लगता है, आपने उसको कैसे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए सर? ये अब लाइफोग्राफी जब बनाते हैं तो सबसे पहले तो जो फैमिली मेम्बर है, अगर उसका सपोर्ट नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो उसका सपोर्ट मिलता है तो उसके पास से हम कहानी तैयार करते हैं कि क्या, कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, सब बात हम लोग रिसर्च में डालते हैं। उसके अलावा उसके कौन से गाने हिट थे, क्या कौन सा वाक्य हिट था, वो सब प्रसंग को हम पकड़ते। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, प्यारेलाल जी है, उत्तम सिंह है, अनुराधा पौडवाल है, अनूप जलोटा है, तुम्हारा जितने भी संगीतकार है जिसके साथ उसने गाना गाया, जो भी जिंदा है, तो उससे हम वो क्वेश्चन पूछ के सब पूरी डॉक्यूमेंट्री को लाइफोग्राफी को तैयार करते हैं। कुछ फिक्शन भी शूट करते हैं। हमने अभी पंजाब में शूट किया, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वो गांव भी शूट किया। तो ये महेंद्र कपूर का प्रोजेक्ट बोलो या रफ़ी का प्रोजेक्ट बोलो, इससे वेरी रिसर्च बेस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम, और उसका मार्केट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है बेचना। लोगों ने बहुत पसंद किया है सर आज। अगर देखें आप, हाँ, लेकिन मेरे घर वाले पसंद नहीं, क्योंकि मैंने लॉस किया है नुकसान किया है। घर वाले खुश नहीं है, लेकिन बोलते कि ठीक है आपका शौक है तो करिए। तो डॉक्यूमेंट्री अभी थोड़ा मार्केट खुल रहा है, लोगों को अभी लगता है कि अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। और अभी पूरे वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट्री का एक दौर शुरू हो गया है। अभी तो जिसके पास मोबाइल है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन सकता है। तो सब्जेक्ट भी अच्छा पकड़ते हैं और बनाते भी हैं, तो अच्छी चीज़ बिकती भी है। तो हम भी कोशिश करते हैं, और राम जी की कृपा होगी तो बिक जाएगी, तो पूरे वर्ल्ड में हम छा जाएंगे। हम नहीं छा जाएंगे, राम जी छा जाएंगे। छाए हुए अपनी याद फिर से उसका एक लोगों को नए तरीके से, नए ढंग में एक फिल्म देखने को मिलेगी।
आपको आपकी फ़िल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और एक सवाल कि आप यूजुअली लाइफोग्राफी बनाते हैं, लेकिन आपने रामलीला कैसे स्विच की सर? आपका कैसे टर्निंग पॉइंट रहा? मैंने जैसे कहा कि कमल पोदार जी जो बिशाव के मेरे दोस्त है, बड़े बिजनेस टाइकून हैं उस गांव वाले, तो उन्होंने कहा था मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है। लेकिन मेरी उसकी बात हुई थी कि जब हमने फर्स्ट बनाया तो उसको दिखाया, तो मैंने बोला इसको हम और बड़े अच्छे ढंग से तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे लिए तो भामाशाह थे, पैसे के लिए कहीं रोका नहीं, जो पैसा मांगा दिया और जो पैसा मिला हमने पैसा नहीं बनाया, लेकिन हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया। सब पैसा प्रोडक्ट में गया हुआ है और जब फाइनल प्रोडक्ट दिखाया तो बड़े खुश हुए। और मुझे लगता है राम जी की कृपा होगी तो हम इसमें हमको अच्छी एक नामना मिलेगी। मैंने आई वर्क विद रामानंद सागर, जब रामायण टीवी सीरीज शुरू हुई थी उसके साथ शुरू काम किया था, तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मैं बहुत करीब था फैमिली से, तो बहुत सी चीज़ सुनने को मिली, जानने को मिली, बहुत सी चीज़ का हमें अनुभव हुआ। तो जो मैंने पाया उसका ये निचोड़ है रामलीला। रामायण से कुछ पाया और रामलीला में मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। सर आपको आपकी फ़िल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों को बहुत अच्छी लगे और राम जी की आप पर हमेशा कृपा बनाए, राम जी अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाई रखे, ऐसा मांगता हूँ और यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सर, आप आए और हमें इंटरव्यू दिया। थैंक यू सर। जय राम जी की, जय राम जी की। नमस्कार. 54th इफ्फीक देशभरातल्या कलाकारांची, लोकांची, डेलिगेट्सांची, इंटरनॅशनल डेलिगेट्सांची यो चालूच आसा. आणि आज आमच्या वांगडा आसात महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध सुपरस्टार जेका आमी म्हणू शकतात, ॲक्टर सुनील बर्वे साहेब. त्यांच्याकडे आम्ही आज भासाभास करूया. मला इफीला येण्याची खूपच इच्छा होती. 54th इफीला तरी मला जमलं याचा मला आनंद आहे. गेल्या 2-3 वर्षांपासून प्रयत्न होते पण मला काही जमलं नव्हतं. यावर्षी मी ठरवून आलो होतो की काही झालं तरी मी जाणार म्हणून. मी फर्स्ट टाइम. दिस इज द फर्स्ट टाइम दॅट अच्छा. मी वाट बघत होतो मला इन्व्हाइट करतील कधीतरी, माझी फिल्म असेल, पण अनफॉर्च्युनेटली तशी काय कधी योग आला नाही. पण ठीक आहे, मी म्हटलं की मला एक बघायचं आहे, एक फिल्म प्रोफेशनल म्हणून मला आय वॉन्टेड टू सी इट, कसं ऑर्गनाईज करतात, काय काय मजा असते इथे. सो आय डिसाइडेड अँड आय केम फॉर 2 days. आता उद्या परत जाणार मी मुंबईला. कसं काय वाटलं म्हणजे? खूपच छान एक्सपिरियन्स होता. फिल्म्स वर गुड, म्हणजे त्या फिल्म्स नेहमी मी जे फेस्टिवल्स बघितलेत त्याच्यामध्ये काही फिल्म्स बऱ्या असतात, काही फिल्म्स आपल्याला आवडत नाहीत, लोकांना आवडतात, असं सगळं होतं. ते तर होतंच, पण छान वाटलं मला एक तर उशिरा ते सगळ्या ॲपबद्दल नॉलेज मिळालं. अच्छा. तर ते जर आधी मिळालं तर जास्ती बरं होईल. सो पण बाकी ओव्हरऑल द एक्सपिरियन्स वॉज फॅन्टॅस्टिक. गोवन पीपल ॲज ऑलवेज इतके छान त्यांनी सगळे लाईटिंग केलेले आहेत आणि इतके छान काय म्हणतात त्याला की हां एकदम खूप प्रेमाने वागवत आहेत आम्हाला. त्या बसवाले पण सगळे छान आहेत. सगळे ऑर्गनायझिंग खूप छान झालं आहे. सर अजून एक स्पेशालिटी आहे, म्हणजे या वर्षापासून काहीतरी गोवन फिल्मसाठी वेगळा असा एक हे केला आहे, काय म्हणाल? चांगली गोष्ट आहे. इतका उशीर का झाला आहे, म्हणजे मला असं वाटतं पहिल्यापासून असायला पाहिजे होतं. गोवन फिल्म्स, गोवन थिएटर तुमचं जे आहे फेमस, ते सगळ्या गोष्टींना परत उजाळा मिळायला पाहिजे. आणि वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर अँड मोर गोवन फिल्म्स. तुम्ही आता कधी येत आहे, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, मूवी घेऊन कधी येत आहे? आता बघूया, माझ्या 2-3 फिल्म्स आहेत, कधी त्यातली कुठली सिलेक्ट झाली तर येऊ परत, नाही तर मी येईन असंच. मला असंच आवडतं. सो फर्स्ट टाइम आलात, नाव यू गॉट द फील. येस, आय गॉट द फील अँड आय एम हॅपी अबाउट इट. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. 54वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चालू असा आणि विविध सेक्शनातले फिल्मां ह्या इफीन दाखवले गेले वयता. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान इंडियन नॉन फीचर फिल्म्स म्हळ्यार शॉर्ट फिल्माचो पड्डो उक्तो जाल्लो आसा अँड्रो ड्रीम्स ह्या फिल्मान. अँड्रो ड्रीम्स ही फिल्म खूप चर्चेत अशी फिल्म आसा आणि रियल लाईफ डॉक्युमेंटरी फिल्म आसा लायबी ह्या महिलेचेर आधारीत. आणि ही जी फिल्म दिग्दर्शीत केल्ली आसा ती निर्माती आणि दिग्दर्शक आमच्या वांगडा आसात डॉक्टर लॉंगजॅम मीना देवी. ही ह्या जे डिरेक्टर आसात हे पहिली वुमन डायरेक्टर आसा मणिपूरची, ज्यांच्यांनी जांकां नॅशनल अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. आमच्या वांगडा ते भासाभास करपा खातीर उपस्थित आसा आणि आमी तेंच्या वांगडा अँड्रो ड्रीम्स ह्या फिल्मा विशयी उलयतलीं. मैम, पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि ईफी के नॉन फीचर
इंडियन पैनोरामा में सिलेक्शन हुआ और ओपनिंग स्क्रीन आपके फिल्म से हुई। कैसे आप अपनी खुशी अदा करेंगी कि नॉन फीचर में आपकी पहली फिल्म थी ओपनिंग के लिए? जी बिल्कुल, हम काफ़ी खुश हैं कि हमारा फिल्म अंड्रो ड्रीम्स से इंडियन पैनोरामा का इफ़ी में ओपनिंग हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंड्रो ड्रीम्स जो मेरी जो छोटी सी एक फीचर लेंथ फिल्म है वो इतना बड़ा समारोह में, इतना अंतर्राष्ट्रीय समारोह में, लेवल में मेरे फिल्म से ओपनिंग होगी। हम बहुत खुश हैं। मैम, ये स्टोरी है फुटबॉल की, और ऐसे फुटबॉल की जो एक लेडी फुटबॉल जो कला है, जो खेल है, उसको बरकरार रखने के लिए, विलेज में ज़्यादा ज़िंदा रखने के लिए अपनी कोशिश करती है। और गोवा भी ऐसा स्टेट है जहाँ पे फुटबॉल बहुत मज़े से और बहुत ज़्यादा खेला जाता है। तो पहली बात तो ये कि लाइबी देवी जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, ये स्टोरी और उन तक आप कैसे पहुँची? हाँ बिल्कुल, जब हमको लाइबी जी के बारे में एक न्यूज़पेपर में इनकी बारे में इनकी छोटी सी छवि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक ई-वेब न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसा एक मणिपुर में एक छोटा सा ऐसा एक गांव है जहाँ पे लाइबी के एक 60 साल के ऊपर की एक महिला जो अंड्रो मंडल महिला एसोसिएशन फुटबॉल क्लब बोल के एक चला रही है, एंड जहाँ से बहुत सारे लड़की मतलब फुटबॉल खिलाड़ी वहाँ पे बहुत जागरूकता से बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलते हैं और एक क्लब चला रही है। वो सुनने के बाद हम ऑलरेडी पहले से ही दो महिला के ऊपर ऑलरेडी फिल्म बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री ही हम बनाते हैं। तो मुझे ऐसा इंस्पायर हुआ कि इनकी कहानी को ज़्यादातर लोगों को पहुंचाने के लिए मुझे एक और डॉक्यूमेंट्री करना चाहिए इन्हों मतलब लाइबी जी के ऊपर। सो ऐसे करके मुझे ऐसा उत्साह हुआ। सो इसीलिए हम अंदरों में गए और थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, और बिल्कुल हम इनके पीछे ही लग गए 5 साल। यही पीछे लगने की बात होती है। अगर किसी के ऊपर अगर फिल्म आपको बनानी है जिसके जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है लाइबी देवी, इनसे जब आप मिली तो इनकी क्या रिएक्शन थी फिल्म बनाने के मामले में? लाइबी जी ठहरी एकदम वेरी शांत सी, उनको तो शांत महिला है, काफ़ी बहुत क्यूट सी, दादी जैसी मेरी, बहुत ही उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है गांव में भी। तो जब पहली बार हम उनसे मुलाकात हुई, जब हम मिले, तो जब हमने उनको बताया कि हम आपके ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री के बारे में पहले समझ नहीं है। तो उन्होंने बोला मेरा तो इतना फटा हुआ, इतना गरीब सा मेरा क्लब है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रंग बिरंगा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ मेरा जो स्टोरी बना के तुम क्या करोगे, तुमको कुछ मिलेगा भी नहीं, ऐसे करके। तो फिल्म जगत दुनिया में जो बॉलीवुड में जो चमकदार होते हैं वही लोग सोचते हैं वही सिनेमा है, वही फिल्म है, बट असल में इन लोगों का जो असल में जो हीरो है, मतलब जो ये लाइफ में इतने सारे बच्चों के लिए जो करते हैं, वो ऐसे मतलब रियल हीरो के हम तलाश में हम कोशिश करके हम बनाते हैं। तो इनको काफ़ी चौकन्ना हुआ कि हम इनकी लाइफ के ऊपर बनाएंगे। सो बट हाँ, धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट्री बोल के भी ऐसा होता है, जो रियलिटी स्टोरी जो होता है, रियलिटी दिखाता है। तो हाँ, अच्छा लगा। उसके बाद मतलब हमारी दोनों के बीच में बहुत दोस्ती बन गई, एक फैमिली जैसे हो गए या ऐसे। तो मैं मेरे दर्शकों को एक शॉर्ट में बता देता हूँ की स्टोरी कैसे। स्टोरी अशी आसा की एक लेडी फुटबॉल महिला आसा जी आपलो क्लब जो आसा तो चलोवपा खातीर धडपड करता, आणि तेतून खुबशे चेडवां आसा जे तो फुटबॉल खेळटा। तेतूंतली एका चेडवाचें लग्न जाता, आणि मागीर ती लग्न जाल्या उपरांत मागीर ती प्रेग्नंटूय जाता। बट तेच्या पयलीं ती बँगलोर फुटबॉल क्लबा खातीर ती सिलेक्ट जाता। अशा प्रकारची ही घटना आसा, आणि ही फिल्म अशा पद्धतीन चलता। सो मैम, हमने देखा फिल्म बहुत अच्छे और रियल लोकेशन पे शूट की हुई है, एंड्रो गांव में। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई रियल लोकेशन पे जाके शूट करने में, या जो भी कुछ दृश्य हम देख रहे थे, क्या क्या कठिनाइयाँ आई? कठिनाई तो है कि इम्फाल से लगभग
30 किलोमीटर जाती है अंदरों की तरफ, और थोड़ा पहाड़ी इलाका भी होता है। हम गाड़ी खुद चला लेते हैं, तो हम जाते हैं तो कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कैमरा नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है तो कभी हम अपना आईफोन में ही खींच लेते हैं कुछ मिलने से। सो ऐसे, और कभी कभी रात को हमको खुद अकेले आने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा एक मोड़ है जो थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी किसी को डर लगता है वो पास करने के लिए, बट लेकिन हम डरे नहीं इतना। हम सोचे हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे डरना नहीं है, ऐसे सोच के हमने ऐसे ही 5-6 साल ऐसे ही गुजारा। कोविड के टाइम में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि मुझे इनका सबको बहुत, कोविड ने तो पूरा देश को, पैंडेमिक था तो बहुत कठिनाई हुई, लेकिन समहाउ भगवान की वजह से सब कुछ ठीक ही हो गया, एंड हम फिर चालू कर पाए इस फिल्म को। और बाकी कठिनाई है कि पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी साल से अगर हम इस फिल्म को रिसर्च करके हम काम कर रहे थे, इसीलिए मुझे फंडिंग की कमी हो गई पोस्ट प्रोडक्शन को एडिटिंग वगैरह ख़त्म करने के लिए। तो तब मेरी को प्रोड्यूसर जानी विश्वनाथ जो दुबई से है, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, किसी ने जान पहचान करवा दिया, तो उन्होंने बोला कि आप इतने एक अच्छे से फिल्म बना रहे हो, हम आपके लिए ज़रूर सपोर्ट करेंगे बोल के बिना मुझे देखे ही उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, मेरी फंडिंग कर दी इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग बहुत खुश हैं। जानी दीवी आई मैं दुबई से यहाँ पे इफ़ी प्रीमियर जहाँ पे ओपनिंग हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, तो रेड कारपेट वो हुआ। सो ऐसे लोगों की कहानी है जो एक अच्छा सा मेहनत के लिए एक ऐसा प्यार जो ह्यूमैनिटी का होता है, एक ऐसा प्यार जो फुटबॉल के लिए हम 3 महिलाओं ने देखा, और ऐसे हम जुड़ गए इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड भी उसी के लिए में भी बहुत सारे लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है इस फिल्म को। हाँ, एक टेक्निकल क्वेश्चन जो गोवा के भी फिल्म मेकर्स है, जो अभी नए फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये कौन से कैमरा से शूट की, जैसे आपने बताया कि आईफोन पे भी कभी कभार मोबाइल पे शूट किया, और पोस्ट प्रोडक्शन के मामले में आपने बताया कि कैसी कठिनाई आई। पोस्ट प्रोडक्शन आपने कहाँ पे किया? लाइक गोवा से बहुत सारी फिल्में बहुत बार मुंबई जाती है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन का कैसा सिलसिला रहा? कौन से कैमरा से शूट की, कौन से इक्विपमेंट्स थे, और पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे किया? हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मेरा पोस्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक बंगाली एडिटर है SRFTI से, संघजित विश्वास बोल के, काफ़ी अक्लेम्ड है। उन्होंने मेरी अंडर ड्रीम्स की एडिटिंग की, और उनके जो एसोसिएट मेरे जो फिल्म के एसोसिएट एडिटर है वो शर्मिष्ठा चक्रवर्ती बोल के एक और मेरी जूनियर जैसी एक लड़की है, उसने भी बहुत हाथ बटाया एडिटिंग के लिए, पूरा लाइनअप वगैरह उसी ने पूरा किया। तो वो इम्फाल में मेरे साथ रह के 2 महीना मेरे साथ रह के इम्फाल में पूरा एडिटिंग किया। उसके बाद थोड़ा फाइनल लुक जब आया, तब हम उस फाइनल वाला लाइनअप को हम कोलकाता लेके गए, और कोलकाता में उसका पूरा फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन कोलकाता में हुआ। और मेरा कलर करेक्शन, सो मेरा जो फिल्म है ऐसे छोटे छोटे हर इंडिया से एक 5-6 साल हो गए। सो मेरा एडिटर बंगाली है, जो कर्नाटका में शूट हुआ वो एक कन्नाडिगा है, और मणिपुर के मेरे बहुत सारे जिसने शूट किया वो मणिपुरी है। सो ऐसा एक मिनी देश जैसा हो गया मेरे फिल्म में। सबने हाथ बटाया इस फिल्म को, क्योंकि सबको ये कहानी बहुत प्यारा लगा, और उनको सब ये महसूस हुआ कि इस कहानी को समहाउ हम लोग सब इतना मेहनत से इनको अच्छे से करना है, अच्छे से लोगों को अच्छे से पहुंचा दे। सो ये हुआ। एंड ऐसा भी हम कैमरा, कौन सा कैमरा से शूट किया आपने पूछा। कैमरा जो है हम PXWX70 सोनी उससे शूट किया, फिर सोनी अल्फा से शूट किया, क्योंकि 2018 से लेके 22 तक तो शूट ही कर रहे थे। लास्ट ये वर्ल्ड कप के
जब वर्ल्ड कप हो रहा था तब फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था तब तक शूट कर रहे थे। सो कैमरा में भी थोड़ा बहुत उसी चेंजेस का रियल शॉट्स भी आपने टीवी पे जो लिए वो रियल हाँ शॉट्स है। रियल शॉट्स है, वो सब रियल शॉट्स है। सो थोड़ा टेक्निकल थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन हाँ सब कुछ मतलब हम आईफोन से भी बहुत काफ़ी कैप्चर किए हैं, आईफोन 12 एंड 13 प्रो से भी बहुत कैप्चर किए हैं या ह्या फिल्माची जी मुख्य प्रोटॅगनिस्ट असा लायबी देवी अम्मा मतलब अँड्रो महिला मंडळ फुटबॉल क्लब ओके तो असोसिएशन फुटबॉल क्लब सो ती आमच्या वांगडा आसात आमी त्यांच्या वांगडाही भासाभास करतली मैम बहुत बहुत स्वागत आपका ट्रांसलेट ओके मैम आपका स्वागत गोवा में और ईफी में आपको कैसे लग रहा है कि आपके जीवन पर आधारित ये फिल्म गोवा के इस बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय समारोह में दिखाई जा रही है เขาอ่านระดับไปจนแบบฟิล์มนับแบบพุทธกุมเดริฟิล์มนับเบกี้ไปเกี่ยกันวันนั้นน่ามีนาพุทธพิจุนาคอยกว่าปาวหลักมังงำมากะหลักเสรกะสิพุทธก็คอยนาพุทธกุมเดริฟิล์มเกี่ยคอยกี่ history มาพุทธกุมจะคอยยามนงไงใจอะไรกี่ยามน่ะสุขเราใจ लाइबी जी कह रही है कि हम गोवा में आए और इतना बड़ा लेवल में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इनके ऊपर जो फिल्म बनी वो दिखाया यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ एंड हाँ काफ़ी मतलब एक्साइटेड रही करके ऐसे बोल रही है। आपको कभी ऐसे लगा कि आपके जो जीवन के जो दृश्य है जब चित्रीकरण हो रहा था शूटिंग हो रहा था कभी कभार आपको इमोशनल फील हुआ जैसे कि आपको मतलब याद आके रोना वगैरह आ गया ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯦ ꯂꯥꯏꯕꯤꯗ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯀꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯥꯡꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯅꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯒ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅꯕꯨ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯤꯅꯒ ꯅꯣꯛꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯆꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯣ पुथोपीदवनी है हराव पोखी। हाँ लाइबी जी कह रही है कि जब हम इनके ऊपर हम फिल्म बनाने के लिए काफ़ी शूट कर रहे थे तब उनको लगा कि कि ऐसे हमारे ऐसे मतलब जो एकदम जो एक रोज़ ज़िंदगी है इनकी, तो इसमें ऐसा शूट करके इनको क्या मिलेगा, कुछ खास मतलब लोग हंसेंगे तो नहीं मेरे ऊपर मतलब। लेकिन बाद में मतलब जब हमने इनको कन्विंस किया कि आपको जो कहानी है सबको मुझे मतलब दिखाना है सबको, क्योंकि आप जो जितना मेहनत कर रहे हैं लड़कियों के लिए फुटबॉल के लिए, तब उनको थोड़ा कन्विंस हुआ कि हाँ कुछ अच्छा करने वाली है। अच्छा तर ह्या आशिल्ले अँड्रो ड्रीम्स ह्या फिल्माची डिरेक्टर डॉक्टर लॉंगजॅम मीना देवी आणि लायबी मॅडम ज्या ह्या फिल्माच्या प्रोटॅगनिस्ट जावन आसा। इफी चलता देशविदेशातील कलाकार मंडळी गोंयान आसात, फेमस आसात, स्टार आसात, आमी त्यांच्या फाटल्यान धांवता, पण ज्यांच्या रियल जीवनाचेर आधारित जे चित्रपट आसा आमी त्यांचाय मागोवा घेवपाचो प्रयत्न करतात। आणि ह्यो गजाली जर तुमकां आवडटात जाल्यार प्रुडंटाक फॉलो करात।